Hello students, welcome to the third part of this science chapter number 11. Okay, we are continuing with some of the more topics of this chapter, that is human eye and the colorful world. So let's start with this session now. Students, today's first topic is atmospheric refraction. What do you mean by atmospheric refraction? Atmospheric refraction is due to the gradual change in the refractive index of the atmosphere. The refractive index of the atmosphere gradually increases towards the surface of the earth because of the hot air above is less dense than the cool air below. So light gradually bends towards the normal. So the real position of a star is different from the apparent position. तो स्टूडेंट स्टार के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म. हमारा एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं होता है हर जगह पे. ओके, अर्थ के सरफेस पे अलग एटमॉस्फेयर है और ऐसे ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. Okay, so the light is continuously getting refracted. When the light comes from the higher atmosphere to the lower atmosphere near the surface of the earth, okay, the light is continuously getting refracted due to the changing density of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होने के कारण और एयर जो यहाँ वहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है उसके कारण है ना, लाइट जो है कंटिन्यूसली बेंड होता है और उसकी वजह से द ऑब्जेक्ट्स हमको सही पोजीशन पे नहीं दिखते हैं. वी कैनॉट सी द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द अपेरेंट पोजीशन. अपेरेंट मतलब कुछ और पोजीशन हमको ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है. ओके, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इट इज़ ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फियर. ओके, so let us discuss now how we all know that the lights the stars twinkle in the sky. हम लोग बचपन में पढ़ते थे twinkle twinkle little star. So we all think that star twinkles, star जो है जगमगाते रहते हैं. But the answer is no, stars never twinkle. Stars continuously produce light, so they never twinkle. तो हमको ऐसे क्यों लगता है कि star twinkle कर रहे हैं? So let us discuss the reason here. Okay students, as you can look into the pic, there is an exact position of the star. जो ऊपर वाला position जहाँ पे खाली star word लिखा हुआ है, that is the exact position of the star, and the star is continuously producing light. The light ray which is coming from the star enters the Earth's atmosphere, and due to the changing density of Earth's atmosphere, it continuously bends towards the normal. हर बार उसका रिफ्रैक्शन होता है एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऐसे बेंड होते 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 इट फॉल्स ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. Okay, now when the ray reaches to the eye of the observer see the stars. He cannot see the exact position of the star. अब ऑब्जर्वर के आंखों को कैसे दिखाई दे रहा है, जो डॉटेड लाइन है ना, देखो वो डॉटेड लाइन जहाँ पे ऊपर जा रही है वो पोजीशन पे स्टार दिखता है, एंड दैट इज़ द अपेरेंट पोजीशन. अपेरेंट मतलब फॉल्स पोजीशन ऑफ द स्टार. इट इज़ नॉट द करेक्ट पोजीशन. सो दिस अपेरेंट पोजीशन, स्टार था कहाँ पे एक्चुअली, ऊपर, और हमको कहाँ दिख रहा है, देखो इधर नीचे की तरफ दिख रहा है. एंड दिस अपेरेंट पोजीशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. वाई? बिकॉज ड्यू टू द मूवमेंट of air and changing density, continuously this apparent position also changes. अभी यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी देर बाद बाजू में दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसके बाजू में दिखेगा. इस तरह से स्टार जो है अपना पोजीशन चेंज करता हुआ लगेगा, क्योंकि बार बार जो है लाइट जो है बेंड होते होते, रिफ्रैक्ट होते होते हमारे आंखों पे गिर रहा है, तो हमको स्टार का पोजीशन बार बार चेंज होता हुआ नज़र आता है. And due to this changing position, due to this fluctuation position, we think that the star is twinkling. हमको ऐसा लगता है कि स्टार बंद चालू हो रहा है. That is the main reason. Actually stars never twinkle. Only the what happens, stars continuously produce the light. It is due to the bending of light in the atmosphere, due to which we can see the apparent position of the star, and this apparent position also changes continuously, and hence we consider as the star are twinkling. Okay students, I hope you must have understood कि क्या reason है कि why do the stars twinkle. Students, once again we have seen that the twinkling of stars is due to the atmospheric refraction of light and due to the changing in the position of stars and the movement of layers of the atmosphere. So the light from the star is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears twinkle. कभी हमको लाइट एकदम ब्राइट दिखाई देता है स्टार का, और कभी कभी फेंट यानी धुंधला दिखाई देता है. तो जब ब्राइट दिखाई देता है तो हम चमकता है, और जब धुंधला दिखता है तो हमको लगता है कि लाइट बंद हो गई है. तो ये जो बंद चालू लगता है, एंड दैट्स वाई इट अपीयर्स लाइक द स्टार्स आर ट्विंकलिंग. बट planets,
वाई डू द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं? तो एक्चुअली प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, ओके, सो दे कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स। ये एक पॉइंट की तरह नहीं माना जाता है, प्लैनेट्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, सो दैट मच बड़ा सोर्स से ज़्यादा लाइट आती है, जिसके कारण प्लैनेट्स की लाइट जो है सीधा हमारे आंखों पे गिरती है और हमको एग्जैक्टली प्लैनेट्स का एक ही पोजीशन दिखता है। सो द प्लैनेट्स को हमको ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। एक्चुअली स्टार्स भी ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स भी नहीं करते हैं, लेकिन स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं ये हमने अभी रीज़न देख लिया। Okay students, and the planets never appear twinkle. Why? Because they are very nearer to the earth and they cannot be considered as a point source. They are the extended source of light. Okay students. Now students, this atmospheric refraction is also responsible for the advanced sunrise and delayed sunset. Yes students, हमारा जो एग्जैक्ट सनराइज़ का टाइम होता है ना, उससे 2 मिनट पे हमको सन दिख जाता है, और हमारा जो एग्जैक्ट सनसेट का टाइम है उसके 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखाई देता है। ओके, सो वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वी कैन सी द सन 2 मिनट्स बिफोर द एग्जैक्ट सनराइज एंड वी कैन सी द सन even after 2 minutes the sun has been set. So what is the reason? The reason is atmospheric refraction. So let us consider this figure. We can see the earth and the observer on the earth, and the orange region is the atmosphere. अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, और ये पूरा ऑरेंज रीजन क्या है? एटमॉस्फियर है। एंड हम अभी लेफ्ट साइड को पहले स्टडी करते हैं। ओके, यू कैन सी द हॉरिजॉन, जो स्ट्रेट लाइन है उसको हॉरिजॉन बोलते हैं, एंड द रियल पोजीशन ऑफ सन इज एट द बॉटम, हॉरिजॉन के नीचे है, अभी तक सन आया ही नहीं है, द रियल पोजीशन इज एट द बॉटम। बट व्हेन द सन रेज आर कमिंग from that sun, it falls on the atmosphere, it comes through the atmosphere, and due to the continuous refraction, it falls on the eye of the observer. ओके, तो रियल पोजीशन नीचे है और वो आई ऑफ द ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ऑब्जर्वर उसको कहाँ देखेगा? स्ट्रेट लाइन करके ऊपर देखेगा, तो उसको ऑब्जर्वर को सन जो है ऐसे लगेगा कि सनराइज हो गया है करके 2 मिनट पहले ही। तो सनराइज के एक्चुअल सन इज नाउ एक्चुअली बिलो द हॉरिजॉन। सनराइज कब होता है? जब वो हॉरिजॉन क्रॉस करके ऊपर आता है। तो अभी वो नीचे ही है तो भी हमको ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, because of the refraction of the light, the observer sees the apparent, the false position as the above the horizon, so we can see the sunrise before 2 minutes only. Similarly what happens कि once the sun has been set, अभी हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ बात करते हैं कि सनसेट हो गया। ओके, अभी सनसेट जो है वो होने के बाद क्या होता है? वंस द सन हैज़ बिन सेट, तो नीचे आ गया हॉरिजॉन के, बट नीचे आने के बाद भी वहाँ से जो सनरेज निकल रहे हैं ड्यू टू द what refraction, due to the refraction we can see the light as the what, as the sun has in the apparent position, हमको ऊपर तक दिखाई दे रहा है। मतलब सनसेट के 2 मिनट के बाद भी हमको सन जो है दिखाई देता है। ओके, द सन इज विजिबल टू अस 2 minutes before the sunrise and about 2 minutes after the sunset. It is also due to atmospheric refraction. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से हमारा जो फुल डे है, जो एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए उससे 4 मिनट ज़्यादा हमको सन दिखाई देता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट? वी नो दैट स्टूडेंट्स देर आर सम स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, है ना, विच स्कैटर्स द लाइट. दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर इन 9th स्टैंडर्ड हमने कोलॉइडल, हमने टाइप्स ऑफ सब्सटेंस देखे थे, कोलॉइडल सब्सटेंस, सस्पेंशन सब्सटेंस ऐसे. तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ, है ना, दे आर बिगर इनफ टू व्हाट स्कैटर द लाइट. तो जैसे ही वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो हमको बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है, हमको लाइट का पूरा बीम, लाइट का पूरा पाथ दिखाई देता है. यू कैन सी द सेकेंड फिगर, फर्स्ट एंड द सेकेंड फिगर. द फर्स्ट एंड द सेकेंड फिगर, फर्स्ट फिगर टेस्ट ट्यूब वाला है, सेकेंड फिगर जो है जग वाला दिखाई दे रहे. एज सुन एज वी थ्रो लाइट ऑन दैट, हम टॉर्च से अगर लाइट मारते हैं तो हमको लाइट का पूरा बीम, हमको पाथ दिखाई दे रहा है. वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सब्सटेंस, है ना, दे स्कैटर द लाइट, and due to that scattering of light we can see the beam of light. This is known as Tyndall effect. What is it known as? Tyndall effect. And this Tyndall effect is seen where? In the dense forests. जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, वाटर एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना. नाउ व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दैट पार्टिकल्स, okay, they scatter the light.
द बीम ऑफ लाइट एंड यू कैन सी दैट बीम ऑफ लाइट. आप देख रहे हो फॉरेस्ट रीजन में पूरा आपको लाइट का बीम दिखाई देता है, लाइट का पूरा पाथ दिखाई देता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट with the what, with the particles present in the atmosphere, dust particles or water vapor particles. Okay, so once again, what is the meaning of Tyndall effect? When a beam of light passes through a colloidal solution, the path of the light becomes visible. We can see the path of the light due to the scattering of light. Okay, this effect is known as Tyndall effect. Okay students, you can look at the diagram also, you will get the clear idea of Tyndall effect. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू. है ना, जो दिन में हमको स्काई दिखता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है? तो एक्चुअली देर आर सम फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, ओके, ऑफ अवर अर्थ. अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है. व्हेन द वाइट लाइट फॉल्स ऑन दिस फाइन पार्टिकल्स, दे आर वेरी वेरी फाइन, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रैदर देन लॉन्गर वेवलेंथ. अब ये जो रेड कलर का जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ लॉन्गर होता है तो उसको स्कैटर नहीं कर पाता है. बट द ब्लू कलर लाइट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ. द ब्लू कलर लाइट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ. सो दिस फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू कलर लाइट, and those blue color light after getting scattered fall on our eyes, due to which we can see the sky as a blue color. है ना, वो रेड कलर के लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए रेड कलर हमारी आंखों पे नहीं आता है, सिर्फ ब्लू कलर आता है और हमको ऐसा लगता है कि स्काई कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता, if earth would not have any atmosphere, then the scattering of this light would not have taken place. अर्थ का एटमॉस्फेयर ही नहीं तो पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, so the light will not get scattered, and if the light is not getting scattered तो सीधा वाइट लाइट नीचे आएगा तो हमको स्काई कैसे दिखेगा, ब्लैक, डार्क, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं था कोई कलर को स्कैटर करने के लिए, तो कोई कलर नज़र नहीं आएगा, हमको स्काई कैसे लगेगा, डार्क. वैसे भी इन द स्पेस, व्हेन वी गो इन द स्पेस, देर इज़ नो लाइट, देर इज़ नो पार्टिकल टू स्कैटर द लाइट, सो वी देर इज़ ओनली डार्कनेस इन द स्पेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट एट सनराइज एंड सनसेट. Students, generally we have seen that during early morning or during the evenings when there is sunset, the color of the sky is nearly reddish color का होता है. So what is the reason behind that? So let us consider the reason. You can see an earth and an observer on the earth. At sunrise and at the sunset, the sun is near the horizon and the light from the sun travels through the thicker layers of the atmosphere and longer distance through the atmosphere. जब सन सनराइज या सनसेट पे होता है ना, देखो आजू बाजू की तरफ होता है. ड्यूरिंग द डे टाइम सन कहाँ पे होता है, ओवरहेड, देखो ऊपर येलो कलर का सन है, वो डे टाइम में होता है, दिन में, दोपहर के टाइम पे. बट सुबह और शाम को सन कहाँ पर होता है, हॉरिजॉन के आसपास होता है, आजू बाजू. ओके, सो सन हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड इट हैज़ टू कवर द थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को पूरा क्रॉस करके सनलाइट को आना पड़ता है. सो नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे. एज सुन एज इट रीचेस नियर द हॉरिजॉन, है ना, तो वहाँ पे हॉरिजॉन में देर आर मेनी फाइन पार्टिकल्स विच स्कैटर अवे द ब्लू लाइट. तो सारा ब्लू लाइट वहाँ पे स्कैटर खत्म हो जाता है, स्कैटर होकर निकल जाता है. ओनली द रेड लाइट और द लाइट विद द लॉन्गर वेवलेंथ रीचेज अवर आइज. सारा ब्लू कलर का लाइट वहीं पे स्कैटर हो गया हॉरिजॉन के इधर, बट ओनली द रेड लाइट कम्स नियर द अर्थ सरफेस. Okay, so the red light falls on the eyes of the observer and the observer sees the red color of the sky during the sunrise and sunset. तो एक्चुअली क्या होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे अर्थ इज़ नियर द सन इज़ नियर द हॉरिजॉन, वो आजू बाजू में होता है, अर्थ के ऊपर नहीं होता है, ओवरहेड नहीं होता है. ओके, सो एट दैट टाइम the most of the blue colored light is scattered away by the fine particles. Okay, but the red color light has to cross through the horizon through the thick layer and it reaches to the eye of the observer. So the observer sees it in the red color. He can see the sky in the red color. Okay students, so students, by this we finish our chapter. Okay, we will meet in the next session with the new chapter. Till then, thank you students.